The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects, nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here. दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना है इसका जब तक दिल में जान है। स्वतंत्रता दिवस के इस समारोह में मैं श्रेया झा, स्टूडेंट कन्वीनर स्पार्क, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस शुभ दिवस का आयोजन स्पार्क ने थिएटर सोसाइटी ताबीर, रेडियो सोसाइटी इंटरसेक्ट और डांस सोसाइटी फितूर के सहयोग से किया है। और इस अवसर पर मैं बिना विलंब किए आमंत्रित करती हूँ डीन डीएमई मीडिया स्कूल डॉक्टर अमरीश सक्सेना सर को कि वह यहाँ उपस्थित लोगों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करें। Thank you, Shreya. This is indeed a matter of great pleasure that we are meeting here on the eve of the Independence Day. Independence Day is observed, as we all understand, to remember the day when the country was formally liberated from the clutches of a foreign rule. There was a long struggle that happened. It was not an easy thing to achieve the independence for India. In one way or the other, the struggle continued for a century, more than a century. And at least formally from the middle of the 20th century, 19th century rather, I should say, and then the half of the 20th century had gone into attaining the independence. There were a number of freedom fighters, some are known, some are not known, who made a very significant contribution for the independence of the country. So this is a day wherein we can remember to the contribution of all sacrificed their lives for the independence of India. And particularly this is more important because people of my generation who were in schools, who were in college in 60s and 70s and 80s, at least they knew as to what was the importance of this independence, because that time there were used to be 20 or 30 years had gone to attaining the independence. But nowadays, when 70 years have gone, we are observing 75 years. So when this 75 years, we will be observing 75 years next year. So that, I mean, today, next day, we will be completing the 74 years, and we are observing this year-long festivals, which will culminate into the 75 years of our independence. So a long period has gone. Now the younger generation, they hardly have anything in mind as to what had gone into independence of the country, except in the books or whatever you watch in the films or whatever you see in the documentaries or whatever you might be hearing from your elders. So the most important thing, since this function is being held in an educational institution, and that too you are the students of journalism and mass communication, and the average age must be 20 years. So it is your responsibility to know more as to how with how much difficulty this independence was attained. Simply a realization will do, because once this realization happens that it is a freedom which has been attained after a long struggle and after thousands of people sacrificed their lives for the motherland. If you if you can understand and if you can appreciate this, then you will do all that possible which is required for retaining this independence.
because we have attained the independence, no doubt. But then any wrongdoings on our part, on the part of any one of us, can harm this freedom. So we have to understand this, we have to appreciate this, and we have to value the independence. हम सभी को जितनी मुश्किल से स्वतंत्रता मिली है, इसकी कीमत समझनी पड़ेगी, इसका मूल्य समझना पड़ेगा, और हमें वो सारे काम नहीं करने हैं जिससे इस स्वतंत्रता को, इस स्वाधीनता को कोई नुकसान पहुंचे। हमें वो सारे काम करने हैं जिससे ये इंडिपेंडेंस और स्ट्रेंथन हो। And there is not just one deed through which we can do it. Anything that we do in our life, if we are just, if we are fair, and if we take care in all the actions, that whether this action of ours is going to harm somebody, anybody in the society, if it is going to harm the vulnerable sections of the society, the women, the children, the downtrodden, वो सारी हमारी जिम्मेदारी है। वो अगर हम वो सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, वी विल मेक आवर इंडिपेंडेंस स्ट्रॉन्ग। और अगर हम कहीं भी ऐसी किसी भी चीज में फेल करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपनी फ्रीडम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, और इट्स ए कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। And comparatively, though no comparison can be made, but still, if we make a comparison as to who is more responsible for this, so obviously the young people have more responsibility, because you will be shouldering all responsibilities of this country in next 30 or 40 years. Anybody who is above 50 or 60 or 70 has a little time, has less stakes. But then somebody who is of 20 years, you have all the stakes. इसी देश में रह के तुम्हें काम करना है, इसी में तुम्हें अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढना है, इसी में तुम्हें अपनी ग्रोथ के लिए काम करना है, अपनी सोसाइटी के लिए काम करना है। तो तुम्हारे पास एक there is a long way to go. So then you have to understand this, you have to value this independence, and this has to reflect in every action. I repeat this, in the sense we have to be disciplined enough to take care of all these things. We have to be punctual enough also. This is again one important aspect of respecting our freedom. If we respect the time of others, if we respect the dignity of others, only then we will get the respect. Only then we can think of that we can have a dignified life. It's something which will come mutually. It cannot be done unilaterally. So everybody has to think of, and if this Independence Day function is happening, then everybody has to feel enthusiastic. Everybody has to feel excited. Everybody has to feel passionate about that. Somehow that appears missing. So which is a matter of pain. Everybody must respect this, and from now onwards we should take a pledge. आज से ही हम ये तय कर लें कि हम इस तरह का कोई भी एक्ट नहीं करेंगे which is not proper, which is not desirable. Then obviously that will be the biggest contribution towards retaining and strengthening of the independence of the country. Thank you all. धन्यवाद सर। स्वतंत्र भारत के तो बहुत सपने देखे थे लोगों ने, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत को लेकर क्या सपने थे उनके? क्या आजाद भारत को वो जैसे देखना चाहते थे वो सपना पूरा हुआ? आइए देखते हैं ताबीर थिएटर सोसाइटी का स्वलिखित स्वरचित नाट्य रूपांतर कल से कल तक, जो बताएगा कहानी एक मासूम की आंखों में भारत को लेकर क्या सपने थे, और पूछेगा एक सवाल कि आने वाले भारत को लेकर आज की युवा के क्या सपने हैं। मैं अंदर आ जाऊं? मैडम दर्जी की दुकान तो पिछली गली में। नहीं, वो ये ना मुझे पर्चा छपवाना था आपके अखबार में। अच्छा, आइए बैठिए फिर।
सोच रही थी, ये जितने पर्चे आते हैं वो सारे आपके अखबार में छप तो जाते हैं ना? और अगर मैं ये छोड़ के चली जाऊं तो कब तक छपेगा? क्या हुआ? नहीं नहीं, बस देख रहा हूँ, बहुत लोगों से छुप के आई हैं आप। पर्दे के पीछे से खुल के सांस लेने का ख्वाब देख रही हैं आप। चेहरे पे बंधे पर्दे ने मेरे ख्वाबों को नहीं कसा है। फिलहाल तो मैं अपने सपने दूसरों की नजरों में पूरा होता देखना चाहती हूँ। सोच तो अच्छी है तुम्हारी, पर ये सच हो पाएगा? स्वतंत्र भारत का सपना सच होने जा रहा है, तो शायद मेरा भी हो जाए। तो फिर ठीक है, चलो तुम ही बताओ, आने वाले भारत की क्या क्या उम्मीदें हैं तुम्हारी? ज्यादा कुछ नहीं, बस स्वतंत्र भूमि की हर एक सांस भी आज़ाद हो। कल जो देश चलाए वो यही सोचे कि मेरा देश आबाद हो। कोई जब बोले तो ना डरने की ज़रूरत हो ना इजाज़त की, पर जब जब बोले तो बात करे आगे बढ़ने की, देश के लिए कुछ करने की। विकसित विज्ञान वचन देगा कि ठीक होंगे सारे रोग, हर अस्पताल बनेगा मिसाल, कहेंगे देश के हर लोग। मिट्टी का बेटा भी पढ़ेगा और बेटी भी, मेहनती को सफलता मिले और उसका हक भी। अरे जैन बाबू, कैसे हैं? अरे हम तो सही हैं, तुम्हारा कैसे आना हुआ? अरे चाय नाश्ता लगवाएं? नहीं 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 नहीं, ये गर्मा गर्म जलेबी लाए हैं रखो आपके रखो लिए। रखो, यहाँ पर रखो। है ना, खाएंगे। रखिए। अरे हम ये कहने आए थे जरा कि हमारा जो लड़का है ना मुन्ना, हाँ हाँ हाँ। वो अभी क्या है कि अपना स्कूल पार नहीं कर पा रहा है। अरे तो 10वीं में वो पार कर नहीं पा, 8वीं तक पढ़ा है, उसे पढ़ना लिखना सब अच्छे से आता है। तो हम ये चाह रहे थे कि अगर आप उसको अरे लगवा बिल्कुल देते बिल्कुल। अपने नीचे तो कुछ अरे अच्छा हम बन कह रहे हैं, जाएगा वो अपना ही भी। लड़का है, सब हो जाएगा, तुम हाँ, दिक्कत हाँ, मत लो हाँ, यार। हाँ, तुम नाश्ता पानी लगवाएं तुम्हारे लिए, आइए हाँ, बैठो। लगवाइए ना। बैठे बैठे। Excuse me. Yes, is Miss Shreya is in right now? You can have a seat there and wait. She'll be just here in any moment. Okay, thank you. Hi. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Just give me the schedule now. Cancel the 2 o'clock then. I'll see about what happens. Oh, hi. Hello, hello. How are you? Yeah. जो 3 o'clock है उसको कैंसिल करो, 2 o'clock उसको कैंसिल करो, और जो जो आर्टिकल्स एडिट कराने थे वो जल्दी से जल्दी पब्लिश हो जाने चाहिए, बिकॉज सही नहीं होता ना. 2 articles are to be edited and then उसके बाद get it done and then we'll talk about it further on. Okay. Thank you. Hi ma'am, good morning. Hi, I couldn't catch your name. मैम नंदिनी, आपसे आर्टिकल से रिलेटेड बात हुई थी. Oh yeah, the one where you were talking about the vision of India. Yes, yes. कुछ लोगी चाय या कॉफी? No ma'am, it's okay. अच्छा, तो नंदिनी, tell me, what is your vision of India in the coming future? वाह, इतने समय बाद आज देख के गर्व महसूस होता है कि देश कितना आगे बढ़ चुका है, और ये विश्वास है कि आगे भी बढ़ेगा। डीएमई थिएटर सोसाइटी ताबीर की इस प्रस्तुति का श्रेय जाता है डीएमई के सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं अनीश धवन, श्रेया झा,
श्रद्धा गोयल, यशिका अग्रवाल, आशीष रावत और फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं सैयद तकी हैदर, कालिदास श्रीनिवास, नंदिनी श्रीवास्तव, तनिष्का तिवारी और प्रतीक चौधरी को। अब आगे बढ़ते हैं। न दौलत दे न शोहरत, कोई शिकवा नहीं, बस भारत माँ की संतान बना देना, हो जाऊं शहीद इस तिरंगे में लिपटा देना। आज मिलकर करते हैं उनको नमन, जिनकी मेहनत और बलिदान से आज हम सुरक्षित हैं। डीएमई रेडियो सोसाइटी इंटरसेक्ट प्रस्तुत करता है एक नाटक, वर्दी की आस। आइए देखते हैं कि कैसे एक फौजी की कमी उसके परिवार में खलती है जब वह सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए जाता है। This is DME Radio and you are listening to Radio Intersect. माँ, वो मैं जरा बाहर तक जा रहा हूँ, आप क्या कर रही हो? माँ। अरे ऋषि बेटा, तू कब आया? अरे माँ, मैं तो कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हो। आपका ध्यान कहाँ है? अरे बेटा, ये देख ना, मैं तेरे पापा की ट्रेनिंग के टाइम की पिक्चर्स देख रही थी। तू भी आना, बैठ मेरे पास। दिखाओ। ये देख, ये तेरे पापा ट्रेनिंग के टाइम पर, और देख तो जरा यूनिफॉर्म में कितने स्मार्ट लग रहे हैं। सही लग रहा है माँ। क्या बात है ऋषि? कुछ नहीं माँ। अरे बता ना बेटा, क्या बात है? छोड़ो माँ, आप नहीं समझ पाओगे। अरे तू बता ना, क्यों नहीं समझ पाऊंगी? बता ना, क्या बात है? कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था कि हमारे पास डैड के साथ कोई आउटिंग की या कोई मेरे स्कूल फंक्शन की या मेरे बर्थडे की पिक्चर्स क्यों नहीं है? बेटा, बिकॉज योर डैड इज इन द आर्मी एंड उनके लिए देश पहले आता है, फिर फैमिली, एंड इट शुड बी लाइक दैट, डोंट यू थिंक सो? हाँ माँ, ये तो है, बट फैमिली शुड एटलीस्ट कम सेकंड और थर्ड और फोर्थ। आई मोस्टली नेवर हैड माय डैड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। बेटा, मैं समझती हूँ, बट वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड हिज जॉब। माँ, यू नो व्हाट, आप समझ ही नहीं सकती। आप तो क्या, कोई भी नहीं समझ सकता। ऋषि बेटा, बात तो सुन। नहीं माँ, मैं ही क्यों हर बार सुनूं और समझूं? Like I have to give up my childhood and my dad for the nation without any choice. How is it even fair? अच्छा, calm down. इधर आ, मेरे पास आकर बैठ और सुन। जैसे तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं थी, वैसे ही your dad also didn't have any choice. He is serving the country and leaving his son behind so that millions of other kids could have their family by their side. Why me, ma? Why me? Like, why can't I be among other million children who can have their family, and why can't I have a normal picnic or a school PTM where my dad would also be there? If he's there willing to sacrifice his life for the nation, so the least we can do is sacrifice all that for him. For whom am I even sacrificing, ma? I don't even know what my dad feels about me or whether he's happy with me or not. Like, in my every small and big decisions, I never had my dad, and I don't know whether he'll be there or not. Rishi, you think your dad doesn't love you, and that is just not fair and right. He always loved you, and every time he writes a letter, he asks about you. And maybe he might have missed a lot of important events of your life, but he didn't want it to be like that. But he always tries to be a part of your life through me, and you at least have me and your dad so many pictures. But उनके पास तुम्हारी एक ही पिक्चर है, और वो भी बचपन की. And he survives through the extreme conditions through that. माँ, बट मुझसे कभी कुछ कहते क्यों नहीं है? Like, डांट ही दे थोड़ा सा. पर जब भी घर आते हैं, ना ही मुझे डांटते हैं, ना ही कुछ बताते हैं उनकी उन्हें ये पसंद आया या ये बिल्कुल पसंद नहीं आया. Does he not even like talking to me? बेटा, it is because उन्हें नहीं पता कि कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करें. जैसे तुम्हें नहीं पता कि वो क्या सोचते हैं, उन्हें भी नहीं पता कि तुम क्या सोचते हो. And he wants to fill this void, but he does not want to force you or hurt you with anything. So what am I supposed to do? It is simple. Talk to him whenever he is here with you and get to know each other more.
And beta, I can assure you one thing, that he might not say it directly, but he loves you the most. And he's proud of who you are and what you have become. And that is why he gives you a chance to make all of your decisions on your own. I love him too, Ma. Say that to him directly when he'll be back. And next time, whenever he comes, we're definitely going for an outing. You don't have to sacrifice that with your dad for anything. This Independence Day, let's celebrate the families of the soldiers who are posted on our borders. The production manager, writer, and voiceover artist for this production is Kalidas Srinivas. Another voiceover artist is Nikita Taneja. The editor for this production is Shavik Mandal. वाह, देश के लिए बलिदान देने वालों के साथ उनके परिवार वालों को भी सलाम है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच अब जुड़ चुके हैं वाइस चेयरमैन अमन साहनी सर। सर, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इस शुभ अवसर पर यहाँ प्रस्तुत लोगों के समक्ष 2 शब्द कहें। Thank you. I would just like to take this opportunity to wish everybody a very, very happy Independence Day in advance. As I keep saying, independence and freedom in general is something that is very situational. It is only in a given situation that we can enjoy our freedom, not in vacuum. Absolute freedom doesn't really mean anything. So just a reminder to all of us that that our freedom, our independence comes with its sets of duties, with our responsibilities towards each other, towards the country in general. And let us continue to uphold these duties, these responsibilities as we enjoy our freedom. My best wishes. Thank you very much. धन्यवाद सर। अब आगे बढ़ते हुए चलिए देखते हैं डीएमई मीडिया स्कूल की छात्रा आयुषी वर्मा द्वारा प्रस्तुति एक कविता की। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी वर्मा और मैं आज आप सभी के सामने एक बहुत ही प्यारी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हमारा भारत। वो शान है हमारी, रंगमंच है हमारा, जिसके आगे सिर झुके वो है तिरंगा हमारा। 3 रंगों से बना, साहस, शांति और हरियाली का प्रतीक, जो भर दे हर मन में एक नई सीढ़ी सफलता की। आज वो दिवस फिर से है आया जिसके कारण भारत आजाद हो पाया। चुरा ली थी सोने की चिड़िया जिसको हमने फिर से है पाया। आज इसी कारण यह 75वां स्वतंत्रता दिवस हमने पाया। माना गांधी जी ने दिया बलिदान था, मगर उन पत्रकारों को मत भूलो जिन्होंने लिख लिख बढ़ाया साहस और कदम हमारा। याद रहे वो हर व्यक्ति जिसने खून बहाया था, याद रहे वो हर व्यक्ति जिसने खून बहाया था। पूर्वजों से पूछो उन्होंने कैसे वो वक्त बिताया था। लुट लुट कर जीते थे हर दिन, लुट लुट कर जीते थे हर दिन। उन गोरों ने था कत्ल किया, जब क्रांति आई देश में हर भगत सिंह था खड़ा हुआ। पर भूलना मत ए दोस्तों, पर भूलना मत ए दोस्तों उस मिट्टी का एहसान जिस पर सजते हैं फूल जब कफन बने कई इंसान, जब कफन बने कई इंसान। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता थी आयुषी, धन्यवाद आपका। स्वतंत्र भारत का सपना पूरा किया जिसने, वो लोग कभी न बिसराते हैं। आइए करते हैं नमन उनको जिनके कारण हम आजादी का जश्न मनाते हैं। एक प्रस्तुति स्पार्क की ओर से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम। 75 साल हुए देश को आज़ाद हुए और आज हम आज़ाद हिंद में हैं। ये आज़ादी यूं ही बरकरार नहीं, लाखों सेनानी आज भी कुर्बानी को तैयार है। ये हिम्मत है, ये जज्बा है उन लाखों वीर महान का। स्वतंत्र भारत सपना था अपने हिंदुस्तान का। बिगुल बजा जब आजादी का, क्या मतवा ले आए थे। इनकलाब के नारे से भगत ने सोए ज़मीर जगाए थे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
खून दो और आजादी लो। जब बात उठाई बाबू ने, हर वीर सिपाही खड़ा हुआ था भारत की आजादी में। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। याद करो वो तिलक का नारा, स्वराज जन्म सिद्ध अधिकार है। बच्चे बच्चे ने देखा सपना, स्वतंत्र भारत हम सबका अधिकार। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। खून नहीं वो पानी है, ये कहने वाले लोग हुए आजादी के बिगुल में ऐसे भी आजाद हुए। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम ना आ सके वो बेकार जवानी है। कुर्बानी का आगाज कुछ ऐसे तेवर में हुआ, सरफरोशी की तमन्ना लिए बिस्मिल ने फिदा लिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बहरहाल आजादी चाहिए, करो मरो का नारा देकर बापू ने आगाज किया। करो या मरो। जवानी देश पर लुटाना आसान नहीं और तिरंगे में लिपट कर आना सबके बस की बात नहीं। इंडिपेंडेंस डे। इस अद्भुत प्रस्तुति का श्रेय जाता है डीएमई मीडिया स्कूल के फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं प्रिया मिश्रा, प्रांजलि श्रीवास्तव, एमएस दिव्यश्री, अनन्या वर्मा, सूफिया मिर्जा, अक्षिता शर्मा, पूजा जोशी, मेघना बख्शी, नैतिक भट्ट, आर्यन कपूर, कालिदास श्रीनिवास, मोहम्मद अनस, गोपाल कृष्णन, आदित्य सिंगल और प्रतीक शर्मा को। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एचओडी डीएमई मीडिया स्कूल डॉक्टर सुष्मिता बाला को कि वह हमसे कुछ शब्द साझा करें। थैंक यू श्रेया, तुम लोगों ने मुझे इमोशनल कर दिया। एक्चुअली जब हम स्कूल और कॉलेज में थे तो हम लोग कॉलेज में ही जाके 15 अगस्त सेलिब्रेट करते थे और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी क्योंकि मैं हमेशा कल्चरल एक्टिविटी में बहुत एक्टिव होती थी। तो मुझे वो क्षण एकदम से याद आ गए और वाकई में बहुत इमोशनल लगा मुझे। हम लोग 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं और मुझे ये गर्व है कि हम आज़ादी को पॉजिटिव वे में लेकर चल रहे हैं। अभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो इसको कहीं भी लैक कर रही है या मनाना नहीं चाहती है। तुम लोगों ने बहुत एफर्ट्स किए हैं और ये बहुत पॉजिटिव थिंग है। हम जिस वे में चल रहे हैं, जिस काल में चल रहे हैं, जितनी परेशानियों के बीच में चल रहे हैं, बहुत चुनौतीपूर्ण समय है ये और जिसको सभी ने
खासतौर से युवा वर्ग ने उसका सामना पूरी तैयारी के साथ किया है। और मैं मीडिया स्कूल का फेस टू फेस प्रोग्राम देख रही हूँ लगातार, उसमें तो स्टूडेंट्स ने नेगेटिविटी को साइडलाइन किया है और पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं कि जो हो गया हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे चीज़ों को देखना है। उसमें उन्होंने अपॉर्चुनिटीज खोज ली। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम उसको किस तरह से लेते हैं। बहुत सारी कमियां खामियां देश की पॉलिटिक्स में और सब जगह दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे नाज है कि तुम सारे स्टूडेंट्स इसको बहुत पॉजिटिव अप्रोच के संग में, और जितनी भी परफॉर्मेंस हुई बहुत अच्छी हुई। आई प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया तुम लोगों ने। सो हमें आगे भी इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है, पॉजिटिव वे में सारा काम करना है, अप्रोच को अपनी स्ट्रॉन्ग करना है और कलेक्टिवली सारा काम करना है। सो थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद मैम। आज का ये इवेंट जो जिन लोगों ने प्रस्तुत किया है आपके समक्ष, जिन स्टूडेंट्स ने, हम सबका एक ही मोटिव था कि हम ये इवेंट पूरे पॉजिटिव लाइट में शो करें, ताकि जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितनी भी कठिनाइयां आई हैं पिछले 1 वर्ष में, उसे भुलाकर आज हम सब एकजुट होकर इस दिन का जश्न मना सकें। अब मैं अमरीश सर को फिर से बुलाना चाहूंगी कि वे समारोह के अंत में हमसे 2 शब्द कहें। मुझे नहीं लग रहा कि कहने के लिए अब ज़्यादा कुछ बचा है। जो मुझे कहना था मैंने शुरू में कह दिया और उसके बाद तुम लोगों ने कह दिया। तो जो भी चीज़ें हैं हम सबके सामने हैं, और जो लगातार जैसे बाला मैम ने भी कहा कि हम सारे प्रोग्राम्स में हम लोगों ने वाइब्रेंट इंडिया सीरीज शुरू की यही सोच के कि एक हमें 75 साल हमारी आज़ादी को हुए हैं, तो हम ये हमारा तरीका है कि हम कैसे उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो एक अलग तरह का प्रोग्राम बना के हम उसको पूरे साल तक सेलिब्रेट कर सकते हैं। तुम लोगों ने जिस तरह से सारी योजना बनाई इस कार्यक्रम को करने की, और सिर्फ ये कार्यक्रम करने की बात नहीं है कि हमने एक इवेंट कर दिया, वी हैव टू थिंक बियॉन्ड दैट। तो तुम लोगों ने पिछले 4-5 दिनों से जिस तरह की तैयारी की और जिस तरह से अपने प्रोग्राम्स को शूट किया, एडिट किया, तो वो एक पूरा प्रोसेस है। और हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि ऑब्वियसली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा लक्ष्य है, वो निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रोसेस है जिससे गुजर के हम आगे बढ़ते हैं वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और ख़ास तौर से स्टूडेंट्स के लिए तो और भी ज़्यादा, क्योंकि जो असली लर्निंग है वो प्रोसेस, जब आप कोई काम करते हैं तो आप हैंड्स ऑन चीज़ों को सीखते हैं, उससे आपकी लर्निंग भी बहुत फास्ट होती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और आप एक स्टेप आगे जाते हैं अपनी लाइफ में। तो ये जो अप्रोच है जो हम शुरू से ही डीएमयू मीडिया स्कूल में लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स में ये करेज हो, ये कॉन्फिडेंस हो कि वो अपनी डिसीजन ले सकते हैं, अपने फैसले ले सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपनी प्रस्तुतियाँ कर सकते हैं, अपनी बात को आगे रख सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो मैंने शुरू में भी कहा कि ये देश का भविष्य यूथ के हाथ में ही है। तो अगर तुम्हारी इस तरह की ट्रेनिंग आज हो जाएगी तो सिर्फ पत्रकारिता की और मीडिया की बात नहीं है, एज ए सिटीजन हमारा हर क्षेत्र में हम वी आर एक्सपेक्टेड टू मेक सर्टेन कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो सिर्फ मीडिया की बात नहीं है, यू कैन बी एन एक्सीलेंट मीडिया पर्सन, यू कैन बी एन एक्सीलेंट जर्नलिस्ट, बट बियॉन्ड दैट वी ऑल हैव टू बी गुड सिटीजन्स, वी ऑल हैव टू बी ह्यूमन, वी ऑल हैव टू बी एम्पैथेटिक। सो हमें ये सारे गुण हम होने चाहिए। ठीक है, कोई एक आइडियल स्टेट नहीं होती किसी के लिए भी लाइफ में, बट एवरीबडी मस्ट स्ट्राइव टू अचीव दैट लेवल। तो अगर हम कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल तक हम पहुंचेंगे, और अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो निश्चित रूप से वही हमारा इस देश के लिए योगदान होगा और उसी से ये देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये दोनों चीजें साथ साथ हैं, जिस तरह से हम आगे बढ़ेंगे उससे देश आगे बढ़ेगा, और जब देश आगे बढ़ेगा तो उस सब का फायदा हम इस देश में रहने वाले लोगों को ही मिलेगा। तो इस पॉजिटिव स्पिरिट के साथ, इस कलेक्टिव स्पिरिट के साथ हमें इस एकजुटता के साथ काम करना है और आगे बढ़ना है। आई थिंक जो मैंने कहा कि हमको इस तरह की प्लेज लेनी चाहिए आज के इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पे, कि हम और विगर के साथ और स्पिरिट के साथ और जील के साथ और एंथुजियाज्म के साथ हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे और हम इस देश को आगे लेकर जाएंगे।
धन्यवाद। जरूर सर, धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती कृष्णा पांडे, फैसिलिटेटर स्पार्क से, कि वह आए और सभी का आभार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया। देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शब्दों में, यदि हम स्वतंत्रता नहीं है तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। माफ कीजिए, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। यदि हम स्वतंत्र नहीं है तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कृष्णा पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर मीडिया, DMU स्कूल, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अब समय है सबका आभार व्यक्त करने का। इस कार्यक्रम में 3 सोसाइटीज DME की एक साथ जुड़ी, थिएटर सोसाइटी ताबीर, डांस सोसाइटी फितूर और रेडियो सोसाइटी इंटरसेक्ट। स्पार्क की टीम की तरफ से तीनों सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये समय है उन सभी विद्यार्थियों को भी धन्यवाद करने का जिन्होंने इस कार्यक्रम को बनाने और प्रस्तुत करने में अपना योगदान दिया। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार और धन्यवाद करती हूँ हमारे कॉलेज के वाइस चेयरमैन मिस्टर अमन सानी का, जिन्होंने हमारे बीच आकर अपने शब्दों से हमारा उत्साहवर्धन किया। मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर अमरीश सक्सेना, डीन DME मीडिया स्कूल, और डॉक्टर सुष्मिता बाला है DME मीडिया स्कूल का, जिनके सहयोग से आज ये कार्यक्रम सही मायने में संपन्न हो पाया। धन्यवाद प्रस्ताव अधूरा है अगर मैं स्पार्क के कन्वीनर्स का नाम नहीं लेती। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मिस श्रेया झा, मिस श्रुति पांडे, जिन्होंने हर समय और हर पल मेरे साथ मिलकर काम किया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी मिस्टर योगेश शर्मा और डॉक्टर टीना बोरा का, असिस्टेंट प्रोफेसर DME मीडिया स्कूल, जिनके तकनीकी सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया। अंत में सभी दर्शकों का भी आभार और धन्यवाद जो अंत तक हमारे साथ बने रहे और हमारे कार्यक्रम का बहुत बहुत आनंद उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे विदा लेती हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू। In DME, we believe in engagement and empowerment of students. And since the time this COVID-19 struck in 2020, we intensified this whole process. For the education sector, it was a big challenge. At DME, our small dynamic team decided to take this challenge head on. We organize different kind of programs, different webinars wherein the distinguished people from the industry and other walks of life, they are invited to interact with the students. We try to keep them engaged in taking out newsletter, writing stories, editing stories, and not only that, they make posters, they make cartoons, they write pieces for the newsletter. Mentoring Cell at DME is a very unique feature in the ecosystem of education. While the subject teachers forge the knowledge domain strongly, it is the mentors who reach out to students in difficult times. During pandemic, when our students faced loss of their loved ones, home isolation, and several other family issues, mentors ensured that students remain cheerful, lively, and stay connected with us. We have ensured that our students are treated with compassion, warmth, and gentle touch. And it has been our endeavor to treat all the academic activities of our students, which includes PSDA, internal assignment, and various other curricular activities accordingly. Research Cell also pays huge emphasis on interdisciplinary nature of research. In order to promote this, the research centers of the Research Cell were also motivated to join with each other and conduct research activities for students, faculties within DME and outside DME. While the strong academics and great industry connect is building great lawyers, media persons, and managers at DME, we at Mentoring Cell are enabling these future leaders to be compassionate, emotionally strong, and resilient for any times to come. We empower the students. All the schools of DME, they have their students council. In DME Media School, this council is Spark. They organize the program themselves, they take their own decisions, and they mobilize the students for all the good cause. Art has the power to unite and connect during the times of crisis. Bringing people together, sharing, soothing, and inspiring are powers of art.
which have been made empathically obvious by the DME cultural societies during the COVID-19 pandemic. By taking different innovative approaches in organizing various virtual competitions and events in which the students of DME have taken part with great enthusiasm and proved that DMEians are unstoppable. Care with compassion is motto of DME. During Corona period, we were always with our students. Their well-being is primary for us. We take care of our students. We met the expectations of the students, of the parents, and above all of the industry. The placements this year were better than those of the previous years. DME is committed to supporting its students in all possible ways.